Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Capricorn Ascendant and the predictions for the month of April 2023. During this month, the Ascendant Lord will continue to pass through the second house of self-earned wealth in the star of Rahu. The second Lord transitioning through its own sign would mean that you will have a good time finance wise in the month of April, especially in the first week of April from 1st to 7th of April. Overall, the first 15 days of April are a good time frame to involve yourself in the charitable institutions, social service related work, and working with foreigner or foreign entities. After 15th of April, the next 4 months are going to be spent in rebuilding and enhancing your reputation at the workplace. You have to start from scratch and work really hard to get back what you have lost over the last 2 3 months. Saturn in the second house is going to increase your responsibilities at the workplace, and your ability to conserve your wealth will be tested as focus will be on saving money. In the next 2.5 years, savings are going to become a priority for you with the increased workload of family responsibilities till Saturn is going to be posited in the Aquarius sign. Venus is going to be stationed in its own house from 6th of April to 1st of May. Venus is a highly benefic planet for you, and all the activities associated with fifth house will see a very good time frame in the month of April. So if you are a student, time frame from 6th to 8th of April, and then again from 18th to 20th of April is extremely good for appearing for any kind of a competitive exams. If you are involved in the speculation, then also the time frame from 18th to 20th of April is extremely good from the earnings perspective. And if you are artist, then also this transit of Venus is going to bring you wealth from your activities. Now there are three planets that are combining in the fourth house. And although Sun is in its exalted situation in the fourth house, this appearance of Rahu and its conjunction with Sun would mean that the benefic results of Sun will not be obtained for you. Further, Jupiter is going to transition into your fourth house on 22nd of April, and in the month of May and June, Jupiter and Rahu are going to combine in your fourth house. So if you look right now, domestic environment is uneasy in the month of April, and this uneasiness is going to continue till the month of June. Further, in the month of April, the fourth house lord and sixth house lord are also seeing an exchange. Now, normally the planets exchanging their signs is considered good if both the good houses are involved, but in this case, the sixth house is not a good house. So you will again not get good or benefic results coming from the fourth house. So domestic environment will continue to remain a challenge because of all these factors. Ketu is also posited in your 10th house and is going to continue to create hurdles for you. Ketu came here in April 2022 and till October 2023, it will continue to pull you away from your work. This is a time for you to take a conservative approach towards your workplace. The more you advertise, the more you highlight your work, the difficult things are going to become for you at the professional level, because this Ketu makes you suffer if you do not remain associated with your roots. You should feed black dog on Wednesday to nullify this negative impact of Ketu. And the key here is to remain humble and grounded at your workplace till the time Ketu is posited here in the 10th house. The good news for you is that once Jupiter makes its transition into the fourth house, it will start aspecting the 10th house, and your sufferings at the workplace that you have been witnessing since April 2022, they will be eased to a very large extent. And this time frame from the beginning of May till January 5th is going to be beneficial for you as far as opportunities at the workplace is concerned. Now, there are also certain dates that you need to remain cautious, and these are the dates where you should avoid taking any key decisions. So, these dates for you in the month of April are 2nd and 3rd of April, 11th and 12th of April, and 25th and 26th of April. Avoid taking any key decisions during these days.
If you look overall, once the Jupiter moves its transit into the fourth house, you will have a better time at your workplace. But the next 4 months are something that you have to work very hard in order to build your trust and reputation at the workplace. So that's the summary for you for this month. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करें कि मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लग्नेश पे नज़र डालें तो लग्नेश शनि द्वितीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। ये यहाँ पर राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे। अगर आप शनि की ही बात करें तो जब भी द्वितीय भाव से शनि जाता है तो वो व्यक्ति की फैमिली के प्रति जिम्मेदारियों को बढ़ाने का काम करता है, और ये द्वितीय भाव स्वयं के कमाए हुए धन का भी स्थान है। तो यहाँ से निकलता हुआ शनि हमेशा व्यक्ति को सेविंग्स करने की तरफ लेके जाता है, और आपका पूरा ध्यान अगले 2.5 साल तक अपने परिवार में पड़ी हुई जिम्मेदारियां संभालने के प्रति और मैं पैसा कैसे बचाऊं इसके प्रति लगा रहेगा। अगर हम अप्रैल महीने की बात करते हैं तो 1 से 7 अप्रैल तक का समय आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से सबसे अच्छा है। और अगर हम पहले 15 दिन की बात करें अप्रैल में, तो अगर आप अपने आप को किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट करते हैं या आप फॉरेनर्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या आप कोई भी सोशल वर्क में समाज के उत्थान के लिए अगर आप काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा इन चीज़ों में यूटिलाइज करने के लिए। और 16 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक का समय, अगले 4 महीने आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने का समय है। और आपने जो भी अपना पिछले 3-4 महीनों में रेपुटेशन अगर गवाई है तो उसको रिस्टोर करने का काम आपको अपनी मेहनत से करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको एक नए सिरे से उभर के काम करना पड़ेगा। शनि यहाँ पे बैठ के तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगा। चतुर्थ भाव में पहले से ही प्लैनेट्स का जमावड़ा होके बैठा हुआ है। सूर्य अपनी उच्च राशि में है, लेकिन राहु यहाँ पर उस पे ग्रहण लगाने का कार्य करेगा, और सूर्य के जो आपको अच्छे प्रभाव मिलने चाहिए चतुर्थ भाव में वो आपको इस महीने में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चतुर्थेश और षष्ठेश का भी आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल बुध की राशि में बैठे हैं, बुध मंगल की राशि में बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो चौथे भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमा होने की वजह से परिणाम बहुत तीव्रता के साथ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से आपके घर में अशांति का माहौल बनेगा अप्रैल के महीने में। और 22 अप्रैल को जब गुरु का भ्रमण चौथे भाव में होगा, गुरु और राहु की युति यानी चांडाल योग बनेगा मई और जून के महीने में, तो आपके लिए अभी घर का माहौल थोड़ा सा मुश्किल भरा है और ये स्थिति जून तक बनी रहेगी। एक बार जब गुरु राहु की युति टूट जाती है उसके बाद गुरु यहाँ पे बैठ के आपके घर के माहौल को थोड़ा सा शांत करने का प्रयत्न करेगा। तब तक का समय डोमेस्टिक हैप्पीनेस के हिसाब से थोड़ा मुश्किल समय रहेगा। यहाँ पे बैठ के गुरु चतुर्थ भाव से आपके दशम भाव को भी देखेगा। तो जब केतु यहाँ पर 10वें भाव में एंट्री की थी अप्रैल 22 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, जब तक केतु यहाँ बैठे हुए हैं तो ये आपको अपने काम से विमुख करते रहेंगे। जब भी केतु दशम भाव में आता है तो जनरली मकर लग्न के लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और वो अपने आप को अपने कार्यस्थल पे अपने काम से डिफरेंशिएट करता हुआ देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने काम की पब्लिसिटी करते हैं तो ये केतु फिर आपको एनालाइज करता है, आपको सफ़र कराता है। और जितना भी आप जड़ों से जुड़े रहेंगे इस समय में, जितने हम्बल रह के काम करेंगे उतना ही ये केतु आपके लिए काम करता हुआ दिखाई देगा आपको। और अगर आप काले कुत्ते को बुधवार को खाना खिलाएंगे तो भी आप केतु के काफ़ी हद तक दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। गुरु जब आपके दशम भाव पे नज़र डालना शुरू करेगा 22 अप्रैल 2023 से, तो अगले 6-8 महीने तक यानी कि जनवरी के मिडिल तक आपको यहाँ पर कार्यस्थल पे मौके बनाएगा तरक्की करने के। लेकिन अप्रैल का महीना तो आपको कार्यस्थल पे मुश्किलें ही झेलनी पड़ेंगी। जब तक गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कार्यस्थल पे आपको एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो अच्छी बात आपके लिए अप्रैल के महीने में हो रही है वो ये है कि शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए पंचम भाव में। शुक्र यहाँ पे 6 अप्रैल से 1 मई तक बैठे रहेंगे, और आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये एक केंद्र यानी दशम और एक पंचम त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस महीने में। अगर आप छात्र हैं तो 6 से 8 अप्रैल तक का समय और 18 से 20 अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है, और 18 से 20 अप्रैल तक का समय
आपके लिए पैसा कमाने की दृष्टि से स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा समय है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अप्रैल 22 तक का समय मिला जुला है। जैसे ही गुरु की आपके चौथे भाव में एंट्री होगी और वो अपने कार्यस्थल के भाव को देखना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए वर्क प्लेस पे चैलेंजेस कम होते जाएंगे और दिसंबर जनवरी तक काफ़ी हद तक कार्यस्थल पे जो भी मुश्किलें आप फेस कर रहे थे वो आपको कम होती हुई दिखेंगी। और अगले 4 या 5 महीने यानी कि एटलीस्ट 15 अगस्त तक का समय आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मकर लगने के लोग वैसे भी करने में सक्षम होते हैं। और इसके परिणाम फिर आपको और आगे आने वाले महीनों में दिखेंगे। तो ये समरी है आपकी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।